الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من ترک الصلاۃ متعمدا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، اتنا عظیم الشان پروگرام منعقد کرنے پر میں کمیٹی اور آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور انہیں خصوصی طور پر مبارکباد دیتا ہوں جو اس بستی کے نہیں رہنے والے ہیں۔ سکندر پور سے بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، ان کے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، قرب و جوار کے ہیں، اور اس رات میں بھی اس وقت اگر خود مجھے تقریر نہ کرنا ہوتی تو شاید میں نہ بیٹھا ہوتا، لیکن واقعی یہ محبت ہے، یہ جذبہ ہے آپ کا۔ اللہ سلامت رکھے اور اس کا بدلہ دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے، آمین۔ حضرات گرامی، رات کے جس وقت مجھے مائک ملا ہے، مجھے پتا ہے کہ اس وقت تو بس رسم ادا کی جائے گی، صحیح ہے نا؟ اس وقت تو رسم ہے، اس لیے چند لمحے میں ہوں، مجھے پتا ہے کہ کیسے سنیں گے، آپ چاہیں گے بھی تو دماغ میں نہیں بیٹھیں گی باتیں، لیکن میں کوشش کروں گا اور آپ بھی کوشش کریں، اس لیے کہ کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی ہے۔ بے شک بے شک، صحیح ہے۔ ادھر آ جائیں ذرا، سب بیٹھیں، میں نوجوان آدمی ہوں، لگ بوڑھا رہا ہوں، لیکن جذبات نئے ہیں، یہ حقیقت ہے، اور میں ایسی گفتگو کوشش کروں کہ جو شاید حالات حاضرہ پر ہو۔ مولانا رئیس صاحب، دیکھیے میں سب جانتے ہیں مجھے بہت قریب سے، میں ادھر ادھر کی بات اور اس وقت تو خاص کر نہیں کروں گا، بالکل مدعے پر آ جاؤں گا۔ جی لگا کر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اہل منبر کی کیونکہ شعر ذرا سخت ہیں کہ غیروں نے بھی مانا کوئی آسان نہیں ہے، غیروں نے بھی مانا کوئی آسان نہیں ہے، سورج کو بلانا کوئی آسان نہیں ہے، غیروں نے بھی مانا کوئی آسان نہیں ہے، سورج کو بلانا کوئی آسان نہیں ہے، اور داماد پیمبر کی یہ شجاعت تھی ورنہ خیبر کو ہلانا کوئی آسان نہیں ہے، داماد پیمبر کی یہ شجاعت تھی ورنہ خیبر کو ہلانا کوئی آسان نہیں ہے، غیروں نے بھی مانا کوئی آسان نہیں ہے، سورج کو بلانا کوئی آسان نہیں ہے، اور ہم تو اپنی نیند بھی قربان نہ کر سکے، ہم تو اپنی نیند بھی قربان نہ کر سکے، نبی کے دین کی خاطر گردن کٹانا کوئی آسان نہیں ہے۔ توجہ رکھیں حالات حاضرہ اور اہل علم، آسماں جلتی زمین پہ نہیں آنے والا، آسماں جلتی زمین پہ نہیں آنے والا، اب یہاں کوئی پیمبر نہیں آنے والا، آسماں جلتی زمین پہ نہیں آنے والا، اب یہاں کوئی پیمبر نہیں آنے والا، اور اپنے کعبے کی تمہیں کرنی ہے خود حفاظت، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا، اپنے کعبے کی حفاظت کرنی ہے تمہیں حفاظت خود، اب یہاں ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا، اور پاپیادہ ریگزاروں میں چلائے جائیں گے، میرے دل جگر کو سنے نا، پاپیادہ ریگزاروں میں چلائے جائیں گے، ایسا لگتا ہے کہ ہم پھر آزمائے جائیں گے، پاپیادہ ریگزاروں میں چلائے جائیں گے، ایسا لگتا ہے کہ ہم پھر آزمائے جائیں گے، ان قبیلوں میں بہت ہے سچ بولنے کا چلن، یہ قبیلے قتل گاہ میں بسائے جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے پلٹ کر کہا تھا حافظ صاحب کہ میرا سارا قبیلہ تو قتل گاہ میں ہے، میرا سارا قبیلہ تو قتل گاہ میں ہے، میں تنہا بچ بھی جاؤں تو جدائی مار ڈالے گی، میں تنہا بچ بھی جاؤں تو جدائی مار ڈالے گی، اور میرے تیور دیکھیں، تو پکارے گا اے سہنے حرم ہم آئیں گے، تو پکارے گا اے
सहने हरम हम आएंगे, अब अबाबीलों की सूरत में हम आएंगे, अबाबीलों की सूरत में हम आएंगे, और हम आएंगे हाथों में लेके सदाकत के अलम। ये बात अलग है कि तादाद में कम आएंगे, और आ ही जाएगा कोई मर्द इब्राहिम से फर, जब भी काबे में ये सनम आएंगे, जब भी काबे में ये सनम आएंगे। हजरत गिरामी, खुशकिस्मती ये है कि हमें नबी मिला है तो नबियों का सरदार मिला है। खुशकिस्मती ये है कि हमें दीन मिला है तो दीनों का सरदार मिला है। खुशकिस्मती ये है कि हमें किताब मिली है तो किताबों की सरदार मिली है। खुशकिस्मती ये है कि हमें मदीना मिला है तो मदीनों का सरदार मिला है। खुशकिस्मती ये है कि हमें किबला मिला है तो किबलों का सरदार मिला है। खुशकिस्मती ये है कि नमाज मिली है तो इबादतों की सरदार मिली है। खुशकिस्मती ये है कि वली भी लाजवाब है, नबी भी लाजवाब है, दीन भी लाजवाब है, और कहो कि जिस मुल्क में रहते हैं वो मुल्क भी लाजवाब है। इसलिए कि आदम उतरे हैं तो हिंदुस्तान में उतरे हैं, और गरीब नवाज आए हैं तो हिंदुस्तान में आए हैं। शुभ हमारे मुल्क का कोई जवाब है और न हमारे दीन का जवाब है। अल्लामा इकबाल पुकार उठे थे, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा, और दुनिया के बुत कदों में पहला वो घर खुदा का, हम पासबा है उसके वो पासबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें दीन मिला तो लाजवाब मिला, किताब मिली तो लाजवाब मिली, इबादतें मिली तो लाजवाब मिली, नबी मिला तो लाजवाब मिला, वली मिला है तो लाजवाब मिला, धरती मिली है तो लाजवाब मिली है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि तुम्हारे कुरान की अजमत की कसम कल भी जमाना खाता था, आज भी खाता है। कल तक तुम्हें देखकर जो लोग कलमा पढ़ते थे आज वो तुम्हारे करीब बैठना गवारा नहीं करते। कल तक जो आदमी अगर तीरथ में जाए अपनी बेटियां तुम्हारे घर हवाले करके जाता था, इसलिए कि उसका अकीदा ये था कि ये मुसलमान है, ये जान तो दे सकता है लेकिन नबी के उसूल से गद्दारी नहीं कर सकता है। ये मुसलमान है, ये किसी गैर महरम पर, किसी की बेटी पर, किसी की बहन पर, किसी की बीवी पर नजरें नहीं झुकन मिला सकता। इसलिए कि हम उस कौम से ताल्लुक रखते हैं कि हर कौम अगर मुल्क फतह करती है या तो बारूद और बम से करती है या तलवारों तीर से करती है, लेकिन मैं उस जाबाज को भी जानता हूँ जिसका नाम खालिद इब्ने वलीद है। उन्होंने ईसाइयों का किला हवाले किया, न बारूद इस्तेमाल की थी, न बम चलाया था, न मुजाहिद इकट्ठा किए, न तलवार बेनियाम की, बल्कि कहा राहिब ने कि गुजर जाओ, किला तुम्हारे हवाले है। बाजार सजाया, लड़कों की जगह दुकानों में लड़कियां मेकअप करके बैठा दी गई, और पूरी मुस्लिम जमात गुजरी, आगे आगे सालार है, पीछे पीछे फौज है, और जब इस पार से उस पार पहुंची तो कहा था राहिब ने, खालिद इब्ने वलीद बताओ हमारा शहर कैसा है, किले की दुकानें कैसी है, रौनकें कैसी है, लड़कियों के लिबास कैसे हैं, लड़कियों का मेकअप कैसा है, उनका चेहरा कैसा है, उसका हुस्न जमाल कैसा है। तो खालिद इब्ने वलीद ने कहा था मैं तो सिपहसालार हूँ, मैं जवाब दूंगा तो मुझे शर्मिंदगी होगी, इम्तिहान अगर सरदार का लेना है तो मेरी फौज के अदना सिपाही से पूछ ले। आज ईसाइयों के सबसे बड़े आलिम ने कहा था कि बताओ लड़कियां कैसी हैं, अदना सिपाही ने कहा था कि बात कैसी करते हो, हमने न दुकान देखी है न दोशीदा देखी है, हमने तो मुस्तफा का फरमान देखा है, खुदा के हकाम देखे हैं, हम तो निगाह झुका के आ गए। तो राहिब पुकार उठता था, जब सिपाही का किरदार ऐसा है तो कलमा पढ़ाने वाले मोहम्मद का किरदार कैसा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अफसोस है मुसलमानों, आज जब हजरत 2 बजे 3 बजे रात में तकरीर करके जाना होता है, ड्राइवर ने आप तो मोटरसाइकिल ही सी हूं मैं ना, एक दिन वो रियाज ना उसने गाड़ी रोक दी झाड़ी पे, और शहर के अंदर जरा सा वीराना था, कहा हजरत यहाँ कोई है, तो मैंने कहा कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई रहता ही है, क्या मतलब? कहा नहीं हजरत कोई घुसा है। अरे मैंने कहा जानवर होगा, जानवरों का दौर है, रोड पे जानवर, खेत पे जानवर, घर पे जानवर, खलियान पे जानवर, जानवरों का दौर है, होगा जानवर, और तू क्या करेगा? कहा नहीं मौलाना साहब जानवर टार्च लेके कब आता है?
नौजवानों तवज्जो रखना। कहा मौलाना साहब जानवर, बैठ जाओ असगर भाई, जानवर टार्च लेके कब आता है? मैंने कहा क्या मतलब? कहा हजरत कोई लड़का है। तवज्जो रखना मुसलमानों मेरी बात पे, और यहाँ से मेरी शुरुआत है। मैंने कहा अच्छा जाके देखो कौन है। वो तरह 2-3 और जो बैठे थे साथ में उतरे, अंदर गए और एक लड़के को पकड़ के लाए। यकीन जानो मेरा चेहरा शर्म से झुक गया। वो मेरा अपना महल्ले का नौजवान था जो रात में 2 बजे किसी लड़की से बात कर रहा था। यही हाल आज हमारे माशरे का है कि जिस खंभे पे देखो कोई नौजवान रात में 1 बजे तक खंभा पकड़ के लाइट का ना लिपटा रहता है और बात करता रहता है। ऐसा लगता है कि पूरे सिकंदरपुर और सरोसी की लाइट इनके खंभा पकड़ने से जल रही है। अगर ये खंभा छोड़ दे तो ट्यूबलाइट बुझ जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। यह हाल हमारे माशरे का है। और नौजवान मेरे भाइयों बुजुर्गों, हंसने की बात नहीं है, गैरत और शर्म की बात है। तेरा बेटा नौजवान 18 साल 20 साल का 2 बजे तक घर के अंदर नहीं आया और तूने पूछा नहीं है कि मेरा बेटा कहाँ गया? अपनी शरीके हयात से पूछा कि बेटा कहाँ गया? रात में ना फैक्ट्री खोला है, ना कारोबार में है, ना मशीन चला रहा है और ना कोई और काम कर रहा है। 2 बजे तक घर क्यों नहीं आया है? कभी नहीं पूछा। हाँ, इतना जरूर पूछा है कि मौलाना लड़के बिगड़ गए हैं, आप लोग काम नहीं कर रहे हो। तेरा नौजवान घर से बाहर है 2 बजे तक और खबर मौलाना लेने आएगा, सुधारने मौलाना आएगा। तेरी लड़की 12-1 बजे तक छत पे बड़ा मोबाइल लेके खड़ी है, बात करती है। अब कभी कभी तो मेरे भाइयों हमारे मुक्तदी कहते हैं कि मौलाना साहब फला के घर न जाना। मैंने कहा क्यों? कहा उनके घर का माहौल अच्छा नहीं है। मैंने कहा बात क्या है? कहा मौलाना साहब उनका लड़का 2 बजे तक चौराहे पे बैठ के बात करता है, उनकी लड़की छत पे चढ़ के 1 बजे तक किसी लड़के से बात करती है। मुसलमानों, अगर लड़का नाजायज बात करे तो घर बदनाम होता है, लड़की किसी नाजायज लड़के से बात करे तो घर बदनाम होता है, शरीयत इस्लाम बदनाम होती है, नबी के कानून की धज्जियां उड़ती है, मुस्लिम सोसाइटी और मुस्लिम मुआशरे की इज्जत व आबरू नीलाम होती है। और लोग कहते हैं कि उनके घर न जाना, माहौल अच्छा नहीं है। अल्लाह अकबर, अगर लड़का छुप के बात करे तो घर बदनाम, लड़की छुप के बात करे तो घर बदनाम। लेकिन नौजवानों सुनो और अपनी बेटियों को बताना, और मेरी बहनें सुन रही हो तो तवज्जो रखे। मैं ना छुप के बात करने को नाजायज कहता हूँ, ना हराम कहता हूँ। हाँ, बस तरीका बदल लो। लड़का भी छुप के बात करे, लड़की भी छुप के बात करे, बूढ़ा भी करे, औरत भी करे, माँ भी करे, लेकिन मोबाइल पे लड़की लड़के से नहीं, लड़का लड़के से छुप के बात ना करे, बल्कि गुस्ल करे, पाक लिबास पहने, वजू करे और रात के सन्नाटे में सजदे में सर रखकर अगर छुप के रब से बात करो तो वली बन जाओगे, अब्दुल कादिर बनोगे, गरीब नवाब बनोगे। या रसूल अल्लाह। अगर छुप के बात करो तो माशरा बदनाम होता है, महल्ले में घर बदनाम होता है। लेकिन काश छुप के बात की होती, लेकिन परवरदिगारे आलम से की होती। अगर छुप के नाजायज बात हो तो बिगड़ता है, और छुप के रब से जायज बात हो तो फिर गुलाम भी ताजदार बन जाता है, गुनहगार भी वली बन जाता है। सही है कि नहीं? एक प्रोफेसर पागल खाने गया रिसर्च करने के लिए, पहुंचा तो देखा कि एक नौजवान है, सुनना, नौजवान है जो मोटी सलाखों में जकड़ा है, दरवाजे बंद, पहरेदार खड़े, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हाय मेरी लैला, हाय मेरी लैला, मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। प्रोफेसर ने पागल खाने के डॉक्टर और निगरान से पूछा कि इसका क्या हाल है, ये क्यों इस तरह के नारे लगा रहा है? तवज्जो रखना मेरे भाइयों और नौजवानों। निगरान ने कहा कि हुजूर प्रोफेसर साहब, इसे एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी और बेइंतहा मोहब्बत हो गई। का फिर का महबूबा की शादी कहीं और हो गई, महबूबा की शादी कहीं और हो गई, ये बर्दाश्त ना कर सका, दीवाना हो गया, पागल हो गया, लैला लैला महबूबा महबूबा पुकारता है।
प्रोफेसर और आगे गया, 2-4 छोड़कर देखा कि फिर एक और दीवाना है, उल्टे पैरों लटका है, उल जलूल बातें कर रहा है, लैला मुझे चाहिए। डॉक्टर से पूछा प्रोफेसर ने ये क्या है? कहा हुजूर इसे किसी लड़की से मोहब्बत हो गई थी। कहा अच्छा समझ गया, इसकी भी महबूबा की शादी कहीं और हो गई, इसे नहीं मिली। कहा नहीं प्रोफेसर साहब इसका मामला उल्टा है। कहा क्यों? कहा उसे नहीं मिली तो दीवाना हुआ, इसे मिल गई तो दीवाना हो गया। नाजायज मोहब्बत में नौजवानों सुनो, नाजायज मोहब्बत में माँ बाप के खिलाफ बगैर मर्जी की शादी में, शरीयत के खिलाफ शादी में मिल जाए तो दूल्हा दीवाना होता है और ना मिले तो मजनू बनता है। अगर नाजायज मोहब्बत हो तो मिलने पे दीवाना, ना मिलने पे मजनू। और अगर मोहब्बत जायज हो और महबूब मिल जाए तो हब्स का बिलाल बनता है, और अगर ना मिले तो कर्ण का अवैसे कर्णिक बनता है। अगर जायज मोहब्बत हो, महबूब मिले तो बिलाल बनता है और ना मिले तो वैसे कर्णी बनता है। सही है? नौजवानों मेरी बात सुनना, और सिर्फ नारे तकबीर तक और इनाम तक नहीं बल्कि अमल तक। आज हमारे नौजवानों में जो मौज पे शॉर्ट वीडियो बनाने का रवाज चला, वो सिर्फ नौजवानों तक नहीं रहा। अपनी बहन का आटा गूंथते हुए वीडियो तुम बनाते हो और फिर दोस्तों में डालते हो। अपनी जवान बेटी के साथ, बीवी के साथ केक काटते हुए वीडियो बनाते हो और फिर फेसबुक में डालते हो और दोस्तों से कहते हो जरा बताओ भाभी कैसी लग रही है। और फिर कहते हो कि मौलाना इस्लाम बड़े खतरे में है। इस्लाम जब 313 थे तब खतरे में नहीं था। इस्लाम जब 72 करबला में थे तब खतरे में नहीं था। इस्लाम जब अब्दुल कादिर बगदाद में थे तब खतरे में नहीं था। इस्लाम जब गरीब नवाज 4 गुलामों के साथ अजमेर के पहाड़ों में थे तब खतरे में नहीं था। आज कैसे खतरे में है? ये कहो कि बदआमाल खतरे में है, बेनमाजी खतरे में है, गुनहगार खतरे में है, आपसी इख्तिलाफात खतरे में है, झगड़ेलू खतरे में है, दाढ़ी कटाने वाले खतरे में है, कुरान घर में रखकर सिर्फ रमजान में निकालने वाले खतरे में है। वरना अल्लाह की इज्जत की कसम, अरब के वो बद्दू जिन्हें ऊंट चढ़ाने का शऊर न था, लेकिन जब कुरान सीने से लगाया है तो उमर जैसा पूरी दुनिया का हुक्मरान। नौजवान आज लड़कियों का, हमारे बहनों का, वो सूफिया अंसारी हो, है ना, नाम पता है ना मुझे? हाँ मैं भी थोड़ा बहुत तो पढ़ा लिखा हूँ। शॉर्ट वीडियो बना रही लड़कियां हमारी, कपड़े उतार नीचे भी छोटा और ऊपर भी छोटा, और फिर झुक झुक के बनाती। किस लिए बनाती? ताकि चैनल चल जाए, मशहूर हो जाए, लोग ज्यादा देखें, फेसबुक कंपनी अकाउंट मांग ले और कुछ डॉलर महीने में आने लगे। यूट्यूब कंपनी हमारा अकाउंट नंबर मांग ले, कुछ रुपए तो मिलने लगे। मेरी बहनों कहाँ जा रही हो? तुम चंद सिक्कों के खातिर कपड़े उतारने लगी हो। तुमने शलवार चंपल की जगह अब छोटे कपड़े पहनना शुरू कर दिए हैं, लेकिन तारीख गवाह है कि तुम्हारे कपड़े भी उतरे हैं। तुम बेलिबास भी हुई हो, तुम उड़िया भी हो गई हो, सरे पासार नीलाम हुई हो, चाहे वो फेसबुक की दुनिया हो या कोई और दुनिया हो, तुम बेलिबास हो गई, इज्जत और आबरू नीलाम हो गई, मजहब इस्लाम बदनाम होता गया, खानदान रुसवा होता गया। तारीख गवाह है कि तुम्हारी इज्जत भी गई, शोहरत भी न मिली, बेकौड़ी बेदाम हो गई, लिबास भी गया, इज्जत भी गई, दौलत भी न आई। लेकिन सलाम करो बिगलौर की उस बेटी को जिसे दुश्मनों ने घेरा, उसने नकाब ने उतारा, चेहरे पे पर्दा किया, एक नारा लगाया, यहाँ से लेकर अरब तक हर शख्स उसको सलाम करता है, उसके जज्बे की कदर करता है। उस लड़की ने बता दिया मेरी बहनों गफलत में ना रहना, इज्जत और शोहरत कपड़ा उतारने से नहीं, गनीज़े फातिमा करने से मिलती है, नबी की बेटी की सीरत पे अमल करने से मिलती है। मुसलमानों खुदारा खबर लो बेटियों की, अपने नौजवान बेटों की खबर लो, अपनी बीवियों की खबर लो
कि मोहम्मद से वफा तो ने तो हम तेरे, ये जहां चीज है का लहो कलम तेरे। आज हाल क्या है तुमने पढ़ा नहीं है, इसलिए बड़ी जल्दी मायूस हो जाते हो। आज दुश्मन तो चाहता है कि जो गैरतमंद खातून है ना, इज्जत के नाम पर, नौकरी के नाम पर, सिक्कों के नाम पर, दौलत के नाम पर, बाजार के खनक के नाम पर हमारी बागैरत बेटियों को भी कुर्सी पे बैठा है। जिस तरह कुरैशी के दुकान पे गोश्त बिकता है, इसी तरह चंद सिक्कों में बेच दे। लेकिन सलाम है उन बहनों को जो सारी दुनिया की खनक को छोड़कर नबी की गुलामी पे मरने को तरजीह देती है। सलाम है उन बेटियों को। हजरत गिरामी, लोग कहते मुसलमान अपनी औरतों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाना चाहता है, क्यों नहीं आजाद रखता है ताकि वो भी जीन्स पहने, वो भी टॉप पहने, वो भी छोटे छोटे कपड़े पहने, बाजारों में घूमे। मैंने कहा नादान, हम अगर अपनी औरत की इज्जत और आबरू की हिफाजत करते हैं और जमाने की गंदी नजरों से बचाना चाहते हैं तो उसकी इसमें तहकीर नहीं है, जिल्लत नहीं है, बल्कि इज्जत इसी में है। इसलिए कि आज तक किसी ने अपनी मोटरसाइकिल तो बाहर खड़ी की होगी, ट्रैक्टर ट्राली तो बाहर खड़ी के होंगे, अपने राशन और बकरी बकरे तो बाहर बांधे होंगे, लेकिन सोना चांदी आज तक किसी ने बाहर नहीं रखा होगा। मैंने कहा ये भी तो लोहा है, इतना महंगा और इतना भारी है, रखा। का मौलाना साहब भारी की बात नहीं, जो जितना कीमती होता है उसकी इबादत उतनी होती है। तो तुमने अपनी औरतों को बाजार में रख दिया, बेकीमत है, और हमारे लिए हमारी बहनें हीरे जवाहरात से भी ज्यादा कीमती है, इसलिए हमने उन्हें नकार, है ना। लोग लेकिन कहते इतराज कर टीवी से लेके अखबार तक हंगामा मचा रहता है। लेकिन कभी किसी ने पूछा है कि जो एयर होस्टेस होती है ना, जो जहाज में काम करती है लड़कियां, आप पूछ लेना, सर्वे करना। इतना तो पढ़ा लिखा मैं हूँ कि पढ़ लेता हूँ थोड़ा बहुत सर्वे, कि देखिएगा जब जहाज की कंपनियां किसी लड़की को एयर होस्टेस के लिए चुनती है, इंटरव्यू होता है, मालूम है शराइत क्या है कि कपड़ा तुम्हें पहनना होगा, बड़ा चुस्त पहनना होगा ताकि सीने का उभार दिखे, पैरों में जरा सा स्कर्ट खोला पहनना होगा, और हमेशा वो फेशियल वगैरह करा के रहना होगा, मेकअप करके रहना होगा। और सुनो बेटियों, जहाज में जहां जितना आवारा बदतमीज नौजवान सवार हो जाए, चाहे गंदे कमेंट करे या आंखों से इशारा करे या भद्दे इशारे करे, बुरा न मानना, वरना तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। है टीवी वालों में दम जो जहाज की कंपनियों से कहे कि इन लड़कियों के भी तो हुकूक हैं, इन्हें भी तो सलवार चंपल पहनने दो, इन्हें भी तो जरा पैंट शर्ट पहनने दो। कोई आवाज नहीं उठाता है। एक खास लिबास होता है, जब उन्हें इजाजत है, हमारी कौम के बेटियों को भी नकार की इजाजत है। हजरत गिरामी, वो भी बिकी है, हमारी बेटियां भी बिकी है। लेकिन जमाने वालों सुन लो, जो ऑफिस में काम करें या कंपनियों में काम करें या जहाजों में काम करें, वो लड़कियां बिकी है तो दौलत पे बिकी है, हमारी बहनें बिकी है तो नबी के इश्क में बिकी है, खुदा के अहकाम में बिकी है। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल। मेरे भाइयों बेटियों को पर्दा करा। एक जगह हाफिज वारिस साहब पर्दे की बात हो रही थी, एक चचा बैठे थे, मौलाना बैठे थे, एक बुजुर्ग बैठे थे आपकी तरह। मौलाना लोग बात कर रहे थे पर्दा लाजिम है। किसी ने कुरान की आयत पढ़ी, वइज़ा सअलतुमुहुन्ना मताअन फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब। महबूब अपनी पाक बीवियों से कह दो कि जब कुछ मांगे तो पर्दे के आड़ से मांगे। आजकल चला है ना, जब लोगों से कहो कि पर्दा करें तो उनकी औरतें कहती कहाँ मौलवी के चक्कर में पड़े, पर्दा तो दिल का है ना। अब हम ही को बताया जाता है पर्दा तो दिल का है, पर्दा तो आंखों का है, वरना चेहरा ढका भी रहे, गुनाह होते रहे, इससे पर्दे से फायदा है। मैं पूछना चाहता हूँ तुमसे और तुम्हारी बीवियों से और बेटियों से, क्या कोई औरत नबी की बीबी माँ आयशा के बराबर हो सकती है क्या? क्या किसी की खातून उम्मे सलमा के दर्जे को पहुंचती है? क्या किसी की बीबी हजरत उम्मे हफ्सा के बराबर है? क्या किसी की बीबी माँ आयशा सिद्दीका के
बराबर है, नहीं नहीं, लेकिन इसके बावजूद खुदा ने कहा नबी कह दो पर्दे में रहा करे। उनसे क्यों नहीं कहा कि आँख का पर्दा है, दिल का पर्दा है, सीधा कहे कि गुनाह करना है। ये तसल्ली की तूने बहाने ढूंढ रखे हैं। हजरत जुनैद बगदादी से किसी ने पूछा था क्या हुजूर कोई आदमी कोई मर्द किसी औरत को पढ़ा सकता है? तो सुनो मेरे कौम के नौजवानों, जुनैद बगदादी ने कहा था अगर पढ़ाने वाला हसन बसरी हो और पढ़ने वाली राबिया बसरी हो और जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाए वो कुरान हो, तब भी मैं इजाजत नहीं दे सकता, इसलिए कि एतमाद अलग है और रब का फरमान अलग। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम नाबीना सहाबी है, नबी के घर गए, मां उम्मे सलमा और 3 अज़वाज में और तशरीफ रखती थी। नबी ने कहा पर्दा कर लो। हजरत मां उम्मे सलमा अर्ज करती सरकार ये तो नाबीना है, इन्हें दिखता नहीं है। नबी ने कहा था कि तेरा हाथ खाक आलूद हो, अब्दुल्ला को नहीं दिखता, क्या सलमा तुझे नहीं दिखता है? अल्लाह अकबर, ये पर्दा है, ये शरीयत का हुक्म है। तो चचा बैठे थे, मैंने कहा चचा पर्दे के ताल्लुक से आप क्या कहते हो? उन्होंने कहा मौलाना बात कैसी करते हो, मैं जाहिल आदमी हूँ, आप लोगों की तरह मौलाना तो नहीं हो कि कुरान पढ़ूं तर्जुमा कर दूं, हदीस पढ़ूं तर्जुमा कर दूं, किसी इमाम का कौल पेश कर दूं, मैं आम आदमी हूँ। मैंने कहा चचा लेकिन तजुर्बे तो है ना, उम्र तो ज्यादा है। कहा मौलाना बात अगर तजुर्बे की है तो फिर मैं कहूँगा पर्दा लाजिम है। मैंने कहा चचा वो कैसे समझे? तो कहते हैं मौलाना मेरा एक पोता है 3 या 3.5 साल का, मैं जब बाहर बैठता हूँ ना अपने बुजुर्ग हम उम्र लोगों में, और जब शाम को रात में 10 बजे लौट के घर जाता हूँ तो 5 रुपए की टॉफी जरूर ले जाता हूँ। कितना थका होता हूँ मौलाना, घुटने दर्द करते हैं, कमर दुखती है, ईमान से कहता हूँ। लेकिन जब घर के दरवाजे पे पहुँचता हूँ और कुंडी बजाता हूँ मौलाना, बहू बाद में आती है, खेलता कूदता पोता पहले आ जाता है और दौड़ लगा के मेरे सीने पे चढ़ जाता है, मेरे कभी पेशानी चूमता है, कभी कंधे पे चढ़ता है, और जब प्यार करता है ना मौलाना सारे दुख एक तरफ और पोते का दादा कह के गले से लग जाना एक तरफ है, उस मोहब्बत से मिलता है। मेरे भाइयों जब नवासे से मिलो या पोते और बेटों से मिलो तो लेके जाया करो, इंतजार करेंगे तुम्हारा, वो खुश हो जाएंगे तो परवरदिगारे आलम खुश हो जाएगा। कहते मौलाना खुश होता था, एक दिन जरा सा कोई त्योहार था, दुकानें बंद थी, मुझे टॉफी नहीं मिली, इत्तेफाक से खिलिया वाला वो जो खुली कंफर्टें बेचते हैं ना पन्नियों में बड़े बड़े पैक करके, का मैंने कहा मजबूरी में यही ले लो। मौलाना 5 रुपए की खुली कंफर्ट खरीदी और लेके गया, पोता आया गले पे चढ़ गया, कंधे पे चढ़ा। मौलाना मैंने जब उसको वो कंफर्टें दी मेरे पोते ने देखा और बाहर कूड़े खाने में फेंक दिए। मैंने कहा बेटा 5 रुपए की लाया हूँ, रोज खा लेता था, आप तूने फेंक दिए हैं, आखिर बर्बाद क्यों किया? ये रिज़्क़े इलाही है। तो कहते 4 साल का पोता है, लेकिन मौलाना उसने वो बात की कि आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा क्या बात की? कहा मेरे पोते ने कहा दादा इन्हें ना आप खाना ना मैं खाऊंगा। मैंने कहा बेटा ऐसा क्यों है? कहा दादा आपने नहीं देखा ये खुली टॉफियां थी, इनमें रेपर नहीं था, पैकिंग नहीं थी। खिलिया वाले चचा कभी कूड़े खाने के पास भी लगे होंगे, कभी गन्ने के जूस के बगल में भी खिलिया लगाई होगी, कभी नाले के बगल में लगाई होगी, मच्छर उड़े होंगे, मक्खी उड़ी होगी और गंदी मक्खियां और मच्छर इस पे बैठे होंगे, कीटाणु आ गए होंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, पेट खराब होगा, इसलिए नहीं खाई। का पता चल गया कि पर्दा लाजिम है। मैंने कहा वो कैसे? का 1 रुपए की टॉफी अगर पन्नी से बाहर आ जाए तो काबिल इस्तेमाल न हो, अगर औरत पर्दे से बाहर आ जाए वो भी घर के लायक नहीं रहती है। अगर घर में रखना है तो नकाब में रखना है, पर्दे में रखना है। सलाम करो उस बेटी को जब पत्थरों का शहर लुट रहा था, गौसे आजम का मस्कन लुट रहा था, इमाम आजम की सरजमी लुट रही थी, जब सद्दाम जैसा शख्स जनरल अजीम रहबर जब फांसी की उसकी तैयारी हो रही थी, अंग्रेजों की बम और बारूद बरस रहे थे, और जब एक महल्ले पे हमला किया तो मर्दों औरत बच्चे
दौड़ लगाने लगे और मीडिया के वो लोग वीडियोग्राफी करने लगे। एक 18 साल बच्ची ने, सलाम है उस बच्ची पर, खुदा उसकी तुरबत पर अब्रे रहमत नाजिल करे। हाफिज वारिस साहब उसने कहा था मीडिया वाले से पलट के, वो मेरे भाई सबका वीडियो बनाओ, फोटो खींचो, मेरा ना खींचना। कहा क्यों? कहा इसलिए कि जल्दी में मैंने दुपट्टा नहीं ओढ़ा है, बेपर्दा हूँ, इसलिए मेरा फोटो ना खींचना। अगर बम चल रहे हो तब भी हमारी बहनें पर्दे का ख्याल रखती थी, और तू शादी जाती है तो जुल्फे बिखेर के जाती है और फिर कहती है कि मौलाना आसेब ने जकड़ लिया है, जिन्नात हावी हो गया है। अरे शरीयत से खिलाफ जब भी कदम उठेगा या तो शैतान पकड़ेगा या कोई और पकड़ेगा, और शरीयत के दायरे में रहेगी तो फिर ये नहीं बल्कि रहमत के फरिश्ते तेरा दीदार करेंगे। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। माशाल्लाह, तो मैं जान ही नहीं पाया। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक पसंदीदा मजहब मजहब इस्लाम है। और नबी अलैहिस्सलाम ने शाद फरमाया, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत बरियत बिन्हु जिम्मतुल्लाह, जो जान बूझ कर एक वक्त की नमाज फर्ज तर्क करेगा, अल्लाह की हिफाजत से वो बाहर हो जाएगा। आप देखें ना, कौन सा दिन है जिस दिन दाढ़ी ना पकड़ी जाती है, कौन सा दिन है जो टोपी ना उछाली जाती है? क्यों? इसलिए कि तुमने नमाज छोड़ना शुरू कर दी है, तुम मस्जिदों से गाफिल हो गए हो, मस्जिदें लड़ाई का अड्डा बन गई है। हसद और चुगली गीबत का हाल ये है कि अपने भाई हमारे गीबत और हसद से महफूज नहीं, और शबे बारात में जाकर जन्नती होना चाहते हो, शबे कद्र में सलातुत तस्बीह पढ़कर जन्नत डायरेक्ट लेना चाहते हो। पूछो ना, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चाहे शबे बारात हो, चाहे शबे कद्र हो, चाहे शबे मेराज हो, इस रात को भी हसद रखने वाला, बुग़्ज़ रखने वाला, चुगली करने वाला और रिश्ते तोड़ने वाला, आपस में लड़ाई लगाने वाला नहीं बख्शा जाए। याद रखो, आज तो हमारा भाइयों के ताल्लुक से ख्याल नहीं। और आखिरी रवायत पढ़ के बस इजाजत लूं, हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो मुरीदे मुस्तफ़ा भी है और मुरादे मुस्तफ़ा है, इन्होंने एक दिन अपने गुलाम से कहा, कुंबल से मछली खाने की तबीयत चाहते है, मछली खाने का इरादा है। हमारी कौम तो रोटी बोटी पे तबाह है ना, जलसे से ज्यादा तो मैंने देखा। और ये हमारे साथ आए थे, मैंने पता नहीं कहा रहे कि इन्होंने खाना नहीं खाया है, या आप बाद में खा लीजिएगा, आपको तलाशा गया। हमारी कौम को रोटी बोटी ने बर्बाद कर दिया। नसीहत का जलसा था लेकिन कोई नहीं आता। हाँ, साइड में रोटी रख के दिखाओ मछली की तरह, जब तक खाली कांटा डाले तो नहीं आती है। किचुआ फंसा दो, मछली लाइन लगाए नजर आएगी। तुम्हारी हालत ये हो गई है। वरना नबी के दीन सुनने के लिए लोग 100-100 किलोमीटर का सफर कर लेते थे। हजरत गिरामी हजरत फारूक आजम ने कहा, गुलाम से मछली खाने की ख्वाहिश है। गुलाम ने कहा, हुजूर अभी इंतजाम हो जाएगा। कहा कहाँ मिलेंगी? कहा हुजूर बस दरिया जाना पड़ेगा। कितनी दूर है? कहा 12 मील दरिया है। फारूक आजम ने कहा था, अगर बादशाह हो तो ऐसा हो, गुलाम हो तो ऐसा हो, हमारा आका और इमाम हो तो ऐसा हो। कहा नहीं, 12 मील मुझे उम्र के लिए घोड़ा दौड़ाना ये तो मुनासिब नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। कहते नमाज पढ़ाने असर की गए, गुलाम से बर्दाश्त न हुआ, घोड़ा खोला और दौड़ के गया, मछली लाया और घोड़ा नहला के फिर बांध दिया और गया, मगरिब में शामिल हो गया। फारूक आजम से धीरे से कहा, ना मुसाफा करती हो? हजरत अल्लाह का शुक्र है मछलियों का इंतजाम हो गया। आपने कहा कि कहाँ से हो गया? कहा हुजूर बस अल्लाह ने करा दिया, आपकी ख्वाहिश थी। हजरत फारूक आजम को शक हुआ, गए, घोड़ा देखा, आगे देखा, पीछे देखा, समझ में नहीं आ रहा। घोड़ा बिल्कुल तरोताजा, इसलिए कि दौड़ता है तो मिट्टी के असरात होते, धूल लगी होती, बिल्कुल चिकना खड़ा है, नहाए धोला। बहुत करीब से जाके देखा, कान उठा के तो नीचे धूल
بری تھی، وہ گیلا کیچڑ تھا نا، جان گئے۔ لوٹ کے آئے اور کہا تو نے کمبر دھلا تو بہت ہے لیکن جلدی بازی میں کان کے نیچے دھلنا بھول گیا ہے۔ کھڑا ہو گیا غلام، کہا حضور غلطی معاف کریں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا حضور آپ نے پہلی مرتبہ تو خواہش کی تھی اور نہ ملتی میری محبت کو گوارا نہیں کیا ہے، اس لیے میں حضور لے آیا۔ کہا اچھا یہ بتا، کل قیامت کے دن اگر گھوڑا میرے نبی کے سامنے خدا سے یہ شکایت کر دے کہ عمر کی ایک خواہش کے لیے رب کریم 24 میل دوڑایا گیا ہوں، تو بتا تیرا جواب کیا ہوگا، میرا جواب کیا ہوگا؟ ایک گھوڑے کے لیے فاروق اعظم نے کہا تھا کہ تیرا جواب کیا ہوگا؟ غلام لرز کے کھڑا ہو گیا، رونے لگا کہ حضور یا انسان نہیں سوچتا ہے اور آپ کیسے نبی کے سچے ہو کہ جانوروں کی سوچتے ہو، اور جب اس طرح کا اخلاق و کردار ہوتا ہے تو بھلے مکی یا مدینے کی زمین پہ بغیر تکیہ کے عمر کھیت میں لیتے ہو لیکن کیسر و کسرا بھی الٹے قدم کھڑے نہ کرتے۔ یہ تیور تلوار سے نہیں، نبی کے سنتوں پر عمل کرنے سے آیا کرتے ہیں، خدا کے احکام پر اور اس کے حکم پر سر جھکانے سے آتے ہیں۔ غیروں نے بھی مانا کوئی آسان نہیں ہے، سورج کو بلانا کوئی آسان نہیں ہے، اور داماد پیغمبر کی یہ شجاعت تھی، ورنہ خیبر کو ہلانا کوئی آسان نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا میری گفتگو کو قبول فرما لے، سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد اراکین جلسہ اور سامعین جلسہ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ساتھ مل کر دل کی گہرائی سے پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔ یا نبی سلام علیکہ، علیکہ آپ کا تشریف لانا، وقت بھی کتنا سہانا، آپ کا تشریف لانا، وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ اور گاتی تھی ترانہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کریم مالک و مولا پاک پروردگار عالم، تیرا فضل، تیرا کرم، تیرا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ مولا تو نے ہم سب کو اپنی حمد اور نبی کی نعتوں اور بزرگان دین کی منقبت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ رب کریم جو کچھ اس محفل پاک میں سر شام سے لے کر اب تک قرآن پاک کی تلاوت، نعت و منقبت، حمد و نعت، ذکر خیر ہوا، مولا ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم جتنے لوگ حاضر آئے ہیں سب کی حاضری کو قبول فرما۔ جن نوجوانوں نے اور جن احباب نے مولا اس جشن مصطفیٰ کو منعقد کیا، مولا ان کی کاوشوں کو، ان کی محنتوں کو، ان کی محبتوں کو قبول فرما۔ رب کریم سب کو دارین کی سعادتیں عطا فرما، دین و دنیا کی مولا انہیں بھلائیاں عطا فرما، اور جنہوں نے مولا سنا ہے مولا اس پہ عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اس طرح کی محفلیں بار بار منعقد کرنے اور ان میں شریک ہو کر سننے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم جتنے لوگ حاضر آئے ہیں ان میں سے جس کی جو جائز حاجت مراد ہو مولا اسے پوری فرما۔ رب کریم جو بھی اولاد ہونے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ مولا جن گھروں میں جوان لڑکیاں لڑکے بیٹھے ہوں غیب سے بہتر اور مناسب رشتہ عطا فرما۔ مولا اس مسجد کو آباد
آباد فرما، ہمیں اپنے سجدوں سے مولا آباد کرنے والا بنا۔ مولا ہمیں تمام تر آپسی اختلافات سے دور رہ کر محبت اخوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کے مطابق ایک ہی جگہ ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اس بستی پر اور جہاں سے لوگ حاضر آئے ہیں ان سب کے بستیوں پر اپنا فضل نازل فرما، کرم نازل فرما، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے عزیز ملک ہندوستان کو امن و امان عطا فرما، اسے داخلی اور خارجی آتنکوادیوں سے مولا محفوظ فرما۔ رب کریم ہم سب سے وہ کام لے لے جس میں تیری اور تیرے محبوب کی رضا شامل ہو، اس کام سے محفوظ فرما جس میں تیرا غضب اور تیرے محبوب کی ناراضگی ہو۔ مولا جو کچھ بیان ہوا اس کا ثواب تیرے پیارے محبوب ہم سب کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نصر قبول فرما۔ جملہ انبیاء، رسل، صحابہ، صحابیات، خلفائے راشدین، امہات المومنین، اہل بیت اطہار، غوث و خواجہ، قطب ابدال، محدثین، مفسرین، مشائخ اسلام والمسلمین، پیران طریقت، رہبران شریعت، علماء اہل سنت کی بارگاہوں میں نصر قبول فرما۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، جو لوگ باہر سے مہمان آئے ہوئے ہیں یا جو لوگ یہاں شامل ہیں جن لوگوں نے کھانا نہیں کھایا ہے